Assalamu alaikum, dear students. Here we are for the third part of momentum, which is basically the topic of chapter number 3, dynamics. And this is the continuation of this topic, and this is lecture number 4. Here, basically, as we have already studied momentum and basic concepts of momentum, here we will discuss few related things like one of the very important case where we can apply the law of conservation of momentum is collision. And when you will talk about the collision, actually, as far as the collision is concerned, we already know that what is the meaning of collision. But in physics, we have two types of collisions. One is termed as the elastic collision, and another one is the inelastic collision. So these are the two types of collisions. One by one we can discuss these two and what and how they are different from each other. As far as the elastic collision is concerned, so this is the simple definition. You can say that the collision in which the momentum of the system and the kinetic energy of the system remains constant before and after the collision. So remember this thing that as far as the momentum is concerned, we have already studied law of conservation of momentum. So this law is valid in this case in elastic collision, and with this law we have another law we can apply here. The kinetic energy of the system remains constant, not the energy law but kinetic energy, you can say. And how we can write these two parts of this type of collision. Here you have the first thing, which is momentum. So as you know that if we have a body of the 1 and another body 2, mass of body 1 is m1 moving with velocity u1 initially, and mass of body 2 is m2, which is initially moving with velocity u2. So this is the situation, initial situation. So when you will add these two things, yani m1 m u1, this is the initial momentum of body 1, m2 u2, this is the initial momentum of body 2. So as far as this whole system is concerned, before collision, what we can write, this is the simple situation. Before collision, you have this momentum which we have mentioned here, m1 u1 plus m2 u2. This is the initial momentum of the system. Here we have the collision, and after collision we found that the bodies are moving with their final velocities v1 and v2 respectively. And with this concept we can simply say that when we will multiply masses by their final velocities, we will get the respective final momentums, and the sum of these two will give us the total momentum after the collision. So this is something which is total momentum of the system after the collision. So total momentum of the system before collision is equal to total momentum of the system after collision. So this is the basic point to remember, and this is of course the law of conservation of momentum which this type of collision will follow. The second thing is your kinetic energy. You already know that here we have half mv square. This is the kinetic energy. So with this situation, how we can write that half m1 u1 square, initial kinetic energy of body 1, half m2 u2 square. So this is the initial kinetic energy of body 2. So this whole thing is the sum of kinetic energies of or kinetic energy of the system before collision. Similar as momentum, here we have these velocities. So you can add these two and you will get the total kinetic energy after collision. So this is the total momentum, the total kinetic energy of the system before collision, and this is the total kinetic energy of the system after collision. So this is the you can say situation of the kinetic energy. But remember this thing and try to understand that what is the meaning when we are saying कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास इसकी जो है वो कंजर्व रहती है. तो इसको समझने की ज़रूरत इस तरीके से है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर गैस मॉलिक्यूल्स हैं. तो जब गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तो जो है वो हम ये कहते हैं कि जी
बाहर की कोई फोर्स जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है और इनके दरमियान में आपस में कोई फोर्सेस भी नहीं थी, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ये याद रखिए कि एक एनर्जी है, एक टोटल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि कोलिजन के बाद कोई एनर्जी किसी दूसरी शक्ल में नहीं गई, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, लॉस नहीं हुई। एंड एज यू कैन थिंक वेरी इजीली दैट दिस इज़ सॉर्ट ऑफ आइडियल सिचुएशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि इलास्टिक कोलिजन में हमने जिस तरह हम फिज़िक्स में करते रहे हैं कि कुछ चीज़ों को हम निगलेक्ट या इग्नोर करते हैं, तो इसमें भी हम आप गौर करें तो ये कंसीडर कर रहे हैं कि जब कोलिजन हुआ था तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, विच इज़ अ वेरी वेरी आइडियल सिचुएशन। लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस कोलिजन को कंसीडर किया है। इसमें एक बात ये भी जहन में रखिए कि अगर वो कहीं कहता है कि हेड ऑन कोलिजन हुआ है, तो याद रखिए कि ये एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। और जब भी ये वर्ड यूज़ किया जाएगा कि जी वी हैव टू बॉडीज़ हैविंग हेड ऑन कोलिजन, तो इसका मतलब ये होगा कि वो बॉडीज़ जो हैं उनके अंदर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ है उनके दरमियान में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो है वो ये एक आइडियल सिचुएशन है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आइडियल सिचुएशन हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ताकि प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई किया जा सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम कंस्ट्रेंट्स और जितनी ज़्यादा हम एडिशनल फोर्सेस कंसिडर करते हैं, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्सेस हों या कोई और फोर्सेस हों, उतनी ही प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। तो टू मेक द थिंग सिंपल वी जनरली कंसिडर कोलिजन्स एज इलास्टिक कोलिजन। प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट विल हैपन, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व रह सकता है, लेकिन जो है वो हम बजाय इसके कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हम ये कहते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको, द कोलिजन इन विच द टोटल एनर्जी एज वेल एज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो ये जहन में रखिए कि यहाँ पर टोटल एनर्जी की बात हो रही है और इसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी ये जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इस केस में भी यही होगा। तो हमारे पास जो है वो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। याद रखिए कि मोमेंटम का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपसे ये कहा जाए किसी भी क्वेश्चन में कि आफ्टर कोलिजन्स नाउ दीज टू बॉडीज़ आर स्टिक टुगेदर एंड नाउ दे आर बिहेविंग एज अ सिंगल बॉडी, सो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट वी विल कंसीडर दिस कोलिजन और दिस कोलिजन विल बी अ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो याद रखिए जब भी स्टिक टुगेदर की सिचुएशन आएगी आफ्टर कोलिजन, तो दिस विल बी योर इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर एक बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो आ रहा है m1 और u1 का केस और m2 u2 हमारे पास दूसरी ज़ाहिर बॉडी और उसकी वेलोसिटी है। और यहाँ हमने इस तरह से कंसीडर किया कि एक ट्रक है वो हिट कर रहा है किसी कार को, तो ज़ाहिर है इसका मैस बहुत ज़्यादा है और उससे क्या होता है कि वो ट्रक अब जो है वो एक तरीके से गाड़ी को खींचता हुआ या जो है वो उसको एक बॉडी बन जाती है ये गाड़ी और आपका ट्रक जो है, और इस तरीके से ये मूव कर रहा है लाइक अ सिंगल बॉडी। तो ये स्टिक टुगेदर वाली सिचुएशन है और इसमें जैसे मैंने भी आपसे कहा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। और ज़ाहिर है कि एनर्जी की कंजर्वेशन की वजह से आप कोई इक्वेशन उस तरह से नहीं बना सकते सिंपली। तो जो भी इसमें आपकी कैलकुलेशंस होंगी वो होंगी विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जैसे मैंने भी आपसे कहा कि यहाँ v1 v2 लिखने के बजाय आप सिर्फ v लिख रहे हैं, क्योंकि अब ये टू बॉडीज़ जो हैं वो आफ्टर कोलिजन एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव कर रही हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये जो है वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है और आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस में इस पर बात की जा रही है। कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये एक सेट ऑफ इक्वेशंस है, इसको कोई ना याद करने की ज़रूरत है ना कोई बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई जो है वो हम किस तरीके से फ़ाइनल वेलोसिटीज़ निकाल सकते हैं मुख्तलिफ़ केसेस में। तो वो मैंने ये इक्वेशंस लिख दी हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप
कोई ये सिलेबस में भी नहीं है सच आपके, लेकिन अगर आप जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ उसको आप देखना चाहते हैं कि वो कैसे आ रहा है, तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ केसेस हम देख रहे हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज एंड देयर फाइनल वेलोसिटीज़। क्या सिचुएशन होगी तो हमारे पास उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ कोलिजन के बाद किस तरह से आएंगी, वो कुछ हम केसेस देख रहे हैं। यहाँ पर जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ये एक बॉडी है, बॉडी ए, u1 उसकी हमने जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ली हुई है, मास उसका ma है। दूसरी बॉडी है b, उसका मास mb है और उसकी वेलोसिटी ut2 ली हुई है। ये हम कह रहे हैं कि ये बॉडी जो है यानी बॉडी b वो रेस्ट में थी, तो ये u2 जो है वो उसका ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कंडीशन फर्दर इसको हम आगे अगर बढ़ाएं तो ये मैसेज जो हैं ma और mb कह दें या m1 m2 कह दें, दे आर इक्वल, सो दे आर इक्वल टू m। तो जब आप ये सिचुएशन ये कंडीशन लेके इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि ये फाइनल आपके पास इक्वेशंस बन रही हैं फॉर फाइनल वेलोसिटीज़। तो हमने देखा कि v1 जो है वो ज़ीरो है और v2 जो है वो u1 है। क्या मतलब हुआ भाई इस बात का? तो पता ये चला कि हमारे पास पहले u2 ज़ीरो था, कोलिजन के बाद v1 ज़ीरो हो गया, यानी जो बॉडी आके कोलाइड की है वो रेस्ट में आ गई और बॉडी b जो थी उसने चलना शुरू किया। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? u1। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर ये जो वेलोसिटीज़ थी इन बॉडीज़ के मैसेज जब इक्वल हैं तो ये इंटरचेंज हो जाती हैं वेलोसिटीज़। इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी इनिशियली, तो पता चला कि फ़ाइनल वेलोसिटी ऑफ v1 ज़ीरो हो गई और जो इसकी वेलोसिटी थी u1 वो हमारे पास v2 हो गई, यानी बॉडी 2 ने उस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया। अब जैसे मैंने भी आपको कहा कि ये आप जो है वो ये कंडीशंस आप याद रखें, ये इक्वेशंस हैं इनमें लगा के देख सकते हैं, लेकिन इनको कोई बाकायदा एज सच करने की ज़रूरत नहीं है सॉल्व, लेकिन ये कंडीशन जो है आपने याद रखनी है। एग्जांपल्स के तौर पर अगर आप देखें तो कोलिजन ऑफ टू स्नूकर बॉल्स जो हैं, अगर हम फ्रिक्शन कंसीडर ना कर रहे हों एक्सक्यूज़ मी, तो ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है कि हमारे पास जो स्नूकर बॉल ट्रेवल कर रही थी 1 वो 2 की तरफ ट्रेवल कर रही थी, जबकि 2 जो थी वो रेस्ट में थी और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1। और जब ये कोलिजन हो गया तो पता चला कि हमारे पास जो है वो v2 जो थी वो ज़ीरो हो गई, v1 जो थी वो ज़ीरो हो गई और v2 जो थी वो हमारे पास हो गई u1, यानी इनका इंटरचेंज हो गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो है वो हमने इनको इस तरह से देखा कि v1 जो है वो हमारे पास ज़ीरो है और v2 जो है वो u1 है। तो बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग। ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर ले ली। या कोई भी टू इक्वल मैसेज अगर कोलाइड कर रहे हैं, जनरली स्पीकिंग आप ये कह सकते हैं, और वो इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, तो ये इनके दरमियान में एक सिचुएशन बनेगी। याद रखिए कि ये जो कोलिजन हम बात कर रहे हैं या जो केसेस हम ये ले रहे हैं ये इलास्टिक कोलिजन के केसेस हैं। केस 2 में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक बहुत बड़ी बॉडी जो है वो एक छोटी बॉडी से जाके हिट करती है, जबकि छोटी बॉडी जो है स्मॉल बॉडी जो है वो रेस्ट में थी एंड द बिग बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल हैपन, तो दिस इज़ आवर टारगेट। तो हमने कंक्लूजन लिखा है, अगेन द सेम थिंग जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इक्वेशंस आप यूज़ करके देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पे क्या हुआ, तो पता चला कि साहब v1 जो है वो u1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बॉडी 1 जो थी या बॉडी a जो थी वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करती रही इवन आफ्टर कोलिजन, लेकिन जो हमारे पास बॉडी रेस्ट में थी वो अब नियरली डबल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी a से मूव कर रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये हुआ कि हमारे पास आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज़ आई हैं वो किस तरह से आई हैं कि जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी v1 की वो तो वही रही, यानी तकरीबन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा उसकी वेलोसिटी पर या बॉडी a की फाइनल वेलोसिटी पर,
लेकिन बॉडी टू जो थी या बी जो थी उसकी वेलोसिटी हमारे पास डबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए हो गई, या उससे उसने मूव करना शुरू कर दिया। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आप ले सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन। तो अल्फ़ा पार्टिकल आपको पता है ये काफ़ी हैवी पार्टिकल है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन ही काफ़ी हैवी होता है, ना कि इसके न्यूक्लियस में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। सो इट्स अ वेरी हैवी पार्टिकल एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन दिस हैवी पार्टिकल यानी अल्फ़ा पार्टिकल विल कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन, सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विल टेक प्लेस। और हमें पता है कि ज़ाहिर है यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल जो फोर्स एक्ट करता है बी पर, वो अगर एफ ए बी है तो हमारे पास बी जो है वो फोर्स एक्ट करता है ए पर, जो एफ बी ए है, अपोजिट और इक्वल हैं। ये हम न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं। तो फिर क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि यार अगर ये इक्वल हैं तो फिर ये हमारे पास जो है वो बड़ी बॉडी को उस तरह से इफ़ेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ जो डिस्कस किया है इस चैप्टर के शुरू में, आई थिंक दिस इज़ द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो उसको जाके गो थ्रू करें और उसको देखें सही तरीके से। बल्कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे हैं और लेक्चर्स आपके कंटिन्यूएशन में एक आपके पास सिलेबस कंप्लीट हो सके। लाइक भी करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इसको फ़ायदा उठा सकें। एनी हाउ, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रक की भी एग्जांपल ली जा सकती है जो कि एक कार से हिट करता है जो रेस्ट में है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है, बस इसने हिट किया है। तो हमने देखा कि हिट करने के बाद जो कार है मिसाल के तौर पर वो तेज़ी से आगे बढ़ती है, ट्रक जो है वो तकरीबन अपनी ही वेलोसिटी से चलता रहता है। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगेन द सेम थिंग ये इनमें रखिए कि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, एंड पर्टिकुलरली दिस कंडीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस को जो हम देखते हैं तो ये सेकंड का जस्ट अपोजिट है। हमने कहा यहाँ पर क्या हुआ है कि एक हमारे पास बहुत ही छोटी सी बॉडी है, वो हमारे पास एक बिग बॉडी से कोलाइड करती है। और बिग बॉडी से कोलाइड किस तरह से करती है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u1 है, वो जाके हिट कर रही है। और हिट करने के बाद जो है वो क्या हुआ है कि हमने देखा कि उसकी जो फाइनल सिचुएशन है वो इस तरह की है। तो किस तरह से है, पता ये चला कि साहब जो v1 था वो इक्वल है u1 के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये हिट करके और ये जो है वो रिबाउंड कर जाती है, ये बाउंस बैक हो जाती है। तो इसकी जो बॉडी ए, जो बहुत छोटी बॉडी है, स्मॉल बॉडी है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, जो वेलोसिटी है, दिस विल बी इक्वल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जबकि हमारे पास जो v2 है यानी सेकंड बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो नियरली ज़ीरो है, यानी इसके ऊपर तकरीबन कोई असर नहीं होता। ये बिल्कुल वही बात है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक बॉल कोलाइड करती है वॉल से, तो हमें पता है कि ज़ाहिर जो हमारे पास वॉल है वो एक बिग बॉडी है, और जो है वो एक बॉल जो है वो एक स्मॉल बॉडी है और काफ़ी स्मॉल है उसके कंपैरिजन में। और हम ये कहते हैं कि और बल्कि देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी हमने किया है कि जब ये बॉल हिट करती है तो ये बाउंस बैक कर जाती है। वॉल पे तकरीबन कोई असर नहीं होता। बॉल जो है वो हमने देखा कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी मैग्नीट्यूड वाइज u1 ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हमने v1 = -u1 लिख दिया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि v2 जो है यानी वॉल की जो फाइनल वेलोसिटी वो ज़ीरो है, इनिशियली भी ज़ीरो थी, फाइनल भी ज़ीरो है। यहाँ पर जो है वो हम एग्जांपल ले सकते हैं बीटा पार्टिकल की जो किसी हैवी न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर यूरेनियम 235 जो एक बहुत ही हैवी न्यूक्लियस है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन हिट करे तो क्या होगा कि वो हिट करके बाउंस बैक कर जाएगा, और ये सिचुएशन हमारे पास होगी इस केस में। यहाँ मैं इसको इसी जो 3 अभी हमने केसेस डिस्कस किए हैं, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा था या चल रहा है उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये एनिमेशन अगर समझें और देखने की कोशिश करें तो किस तरह की सूरत हाल बन रही है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, लाइक वी हैव 2 बॉडीज़, 1 ब्लू एंड 1 रेड और पिंक वटेवर। सो यहाँ देखिए कि आपके पास जो है वो एक बॉडी है जो हम 0.5 मैस है, दूसरी बॉडी है उसका हमने 1.5 जो है वो मैस लिया हुआ है, लेकिन इसको हम बहुत ईजीली 0.5 में चेंज कर सकते हैं। तो अब ये 2 इक्वल बॉडीज़ हैं।
यहाँ मैं इस एनिमेशन को थोड़ा स्लो चलाता हूँ ताकि आप देख सकें कि क्या हुआ है। जब ये दोनों हमारे पास मूव करती हैं तो क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद क्या होता है, तो ये एक दूसरे से अवे जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो हमारे पास वेलोसिटीज़ थी, हम देखें और इसका डेटा देखते हैं, इसको और तरीके से देखते हैं। यहाँ ये देखें कि मिसाल के तौर पर हमने कहा कि जी हमारे पास जो है वो मैसेस तो इक्वल हैं। हमने कहा कि भाई हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर जो हमने कंडीशन अभी देखी थी कि एक इक्वल मास वाली बॉडी जो है वो हिट करती है एक दूसरे इक्वल मास वाली बॉडी को, जबकि जो है वो वेलोसिटी एक की जो है वो उसकी कोई वैल्यू है, दूसरे की वैल्यू हमने ज़ीरो ले ली है, यानी वो रेस्ट में है। अब देखेंगे क्या होता है जब ये इसको हिट करती है, तो हमने ये नोट करना है कि वेलोसिटीज़ किस तरह इंटरचेंज होती हैं। तो ये देखिए कि हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो क्या हुआ कि जो हमारे पास रेड बॉल थी जो इस रेस्ट में थी वो अब मूव कर गई, और जो हमारे पास ब्लू बॉल थी वो अब रेस्ट में आ गई। तो ये सिचुएशन थी जो हमने कंसीडर की थी कि हमारे पास जो है वो हम जो इक्वल मैसेस का केस है उसमें इंटरचेंज हो जाएंगी वेलोसिटीज़। इसी तरीके से हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम ये कहें कि नहीं साहब हमारे पास जो है वो इसकी जो वेलोसिटी थी वो ज़ीरो है, किसकी वेलोसिटी, ब्लू की, रेड की, और जो हमारे पास ब्लू की वेलोसिटी है उसकी हमने कोई वैल्यू ले ली है, मिसाल के तौर पर 1 ही ले लें। तो ये हो गया। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है वो मैसेस का क्या करें, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो ब्लू मैस है वो बहुत बड़ा मैस है और वो एक स्मॉल मैस से जाके हिट करता है। और हमने ये सेकंड केस देखा था कि जब एक स्मॉल मैस से जो कि रेस्ट में था एक बिग बॉडी जो है वो आके हिट करती है। अब यहाँ इनकी वेलोसिटीज़ को नोट कीजिएगा कि क्या इनकी सिचुएशन है, यहाँ पर क्या हुआ है। देखें कोलिजन के बाद क्या होता है, देखें क्या हुआ कि हमारे पास जो वेलोसिटी थी किसकी, छोटे वाले मैस की, वो तकरीबन पहले वाली बॉडी के डबल ऑफ द वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो हमारे पास जो बिग बॉडी थी उसकी तकरीबन वेलोसिटी वही है जो इनिशियल वेलोसिटी थी। ज़ाहिर है यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसीडर किया गया है। अगर आप फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तो ये हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो ये हमारे पास इस वक्त हमने इसको दिखाया। तो ये हमारे पास सिचुएशन है यहाँ पर। और अगर जो है वो आप इसको इस तरीके से देखें कि इसको इन्वर्स कर लें, यानी ये वाला केस जो मैं अभी दिखाया है मैंने आपको, इसको दोबारा देख लें तो ये किस तरह की सिचुएशन है कि पता चला कि इसने हिट किया है। यहाँ देखें ये हम इसके मैसेज को दोबारा से देख लेते हैं। ये यहाँ देख लें, ये मैच जो है, पहले तो खैर इसको चेंज कर लें, यहाँ चेंज करें। यहाँ पर हमने कहा कि अब हमारे पास जो है वो रेड बॉल जो है वो एक बिग बॉडी है, और जो हमारे पास स्मॉल मैस जो है वो, सॉरी मैस की बात हो रही है, मैस जो है वो बिग मैस है, और जो हमारे पास बॉडी आके हिट करेगी उसका मैस हमने छोटा सा लिया हुआ है, और वो हमारे पास 0.1 है। तो ये हमारे पास अगर 0.1 की सिचुएशन पे हम जा रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने कहा कि क्या बात है, हमने कहा जी रेड वाला जो है वो रेस्ट में है, और जो ब्लू वाला है वो किसी वेलोसिटी से सपोज 2 से वो आके हिट करेगा। अब देखिए कि क्या होता है, इसको देखें क्या हुआ। पहली बात तो कि हमने कहा कि भाई हमारे पास जो था वो ये हिट करके बाउंस बैक हुआ, और इसकी वेलोसिटी तकरीबन पहली वेलोसिटी के इक्वल है, और क्या हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिस इज़ समथिंग विच वी वांट टू शो। और इसमें अगर आप मोमेंटम की डायरेक्शन देखना चाहें और ये सारा कुछ, तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आता है। तो एक तो ये समझिए कि हमारे पास एनिमेशन की सिचुएशन है, और आप इसको यूज़ करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कंडीशंस हैं और केसेस हैं जब एक बड़ी बॉडी छोटी बॉडी से, या एक छोटी बॉडी बड़ी बॉडी से, या जब इक्वल मैसेज एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज़ किस तरह से इंटरचेंज होती हैं। ये आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से कहाँ से हमने इसको रिसोर्स क्या है उसको आप यूज़ करके ख़ुद भी मुख्तलिफ़ कंडीशंस पे ले जाके और इसको
यूज़ करके देख सकते हैं, वेलोसिटीज़ को दिखा दें, चेंज ऑफ मोमेंटम दिखा दें, और ये मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनको यूज़ करके इस एनिमेशन को और बेहतर तरीके से आप जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और सिचुएशन है जो इलास्टिक कोलिजन के लिए कंसीडर की जाती है, एंड दिस सिचुएशन एंड दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ लॉ है, लेकिन हम उसको सिलेबस के लिहाज से लॉ की शक्ल में नहीं पढ़ते, ये एक स्टेटमेंट की शक्ल में हम इसको देख रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये इसको हम इस तरह से देख रहे हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये थोड़ा सा आपके जहन में रहना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है। यहाँ पर अगर आप कंसीडर करें कि टू बॉडीज़ आपके पास हैं 1 and 2 एंड दे आर मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटीज़, तो अगर इनकी वेलोसिटीज़ सेम हैं, मिसाल के तौर पर 20 मीटर पर सेकेंड से ये दोनों बॉडीज़ चल रही हैं, तो ये एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव टू ईच अदर आप देखेंगे कि इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं, यानी एक दूसरे के लिहाज से ये रेस्ट में होंगी। ये मैंने जो रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस किया है काइनेमेटिक्स में, लेकिन बहुत आसान चीज़ है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर हमारे पास रेस्ट को डिफ़ाइन करें तो वो क्या होता है कि अगर एक दूसरे के लिहाज से या किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से बॉडी अपनी इस जो है वो पोजीशन चेंज ना कर रही हो तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। तो अगर यहाँ का जो ड्राइवर है वो इसको देखे और यहाँ का ड्राइवर इसको देखे तो ये दोनों एक दूसरे को रेस्ट में फ़ील करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इनकी वेलोसिटीज़ तो मौजूद हैं लेकिन इनकी रिलेटिव स्पीड्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच का क्या मतलब है। तो हमने कहा कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ ये देखिए कि ये केस 1 हमने डिस्कस किया है, इसमें थोड़ा से एरोस का भी जहन में रखिए और मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 जो है वो u1 है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 जो है वो u2 है। ये डायरेक्शंस जो हमने यहाँ ड्रॉ की हैं ये बता रही हैं कि किस डायरेक्शन में ये हमारे पास जो है वो गाड़ियाँ या जो भी हमारे पास बॉडीज़ हैं वो मूव कर रही हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 30 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10। तो अगर आप गौर करें तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं वो कैसे पता चलेंगी, यानी 2 को किस वेलोसिटी से महसूस होगा कि बॉडी ए या 1 उसकी तरफ मूव कर रही है, तो ये ख़ुद जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस जब आप लेंगे तो वो डिफरेंस होगा इसका रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो हम कैसे इक्वेशन को लिखें, u1 माइनस u2। आप कुछ सोच सकते हैं कि u2 माइनस u1 क्यों नहीं लिख रहे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसका मतलब है कि हम अगर ये लिखें कि u2 माइनस u1 तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये कहेंगे कि u2 इज़ ग्रेटर देन u1। तो अगर ये सिचुएशन है तो ये कभी कोलाइड कर ही नहीं सकती। इवन अगर u1 इज़ इक्वल टू u2 हो तब भी ये कोलाइड नहीं कर सकती, ये चलती रहेंगी। लेकिन ये कोलिजन सिर्फ उस वक्त होगा जब u1 इज़ ग्रेटर देन u2 होगा, तब ये जाके इससे कोलाइड करेगी। यानी पीछे वाली गाड़ी अगर तेज़ आ रही है तब वो आगे किसी गाड़ी से कोलाइड कर सकती है, अगर आगे वाली गाड़ी स्लो चल रही है तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है वो है u1 माइनस u2। बहुत सिंपल मैंने समझाने के लिए आपको एरोज़ से आप कंसीडर कर सकते हैं, और ये याद रखिए कि जब एरोज़ एक ही डायरेक्शन में हो तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन होगा, u1 माइनस u2। जब एक ही डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्शन होगा। फिर क्या हुआ, कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद हमने देखा कि जो है वो बॉडीज़ अपनी न्यू वेलोसिटीज़ v1 और v2 से ट्रैवल कर रही हैं। तो पता ही चला कि अगर अगेन द सेम थिंग, इस केस में अगर v1 ग्रेटर देन v2 हो तो ये कभी एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगी। तो ये फिर इलास्टिक कोलिजन का केस नहीं रहेगा, स्टिक टुगेदर का हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं, ये इन इलास्टिक का केस हो जाएगा। तो दिस विल बी अ रॉन्ग सिचुएशन। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि हमारे पास ना ये v1 इज इक्वल टू v2 हो सकता है, ना v1 ग्रेटर देन v2 हो सकता है, बल्कि हमेशा v2 ग्रेटर देन v1 होगा। तो ये रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है वो आप कैसे निकालेंगे, v2 माइनस v1 से। अब ये सारा कुछ जो मैंने आपको समझाया, ये अगर आप को शायद मुश्किल अगर फर्स्ट ईयर लगे तो आप इसको चाहें तो ना भी इतना कोई गौर से देखें, सिर्फ़ और सिर्फ आप अगर
एक काम कर लें कि जो एरोज़ हैं उनको देख लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। जब एरोज़ एक ही डायरेक्शन में हैं तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ देखें कि एक ही डायरेक्शन में है 30-10 और यहाँ पर भी 30-10, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 20 है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन भी 20 होगी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ जो इक्वेशन आप यूज़ करेंगे वो ये इक्वेशन है v1 - v2 इज इक्वल टू u1 - u2 इज इक्वल टू v2 - v1। केस 2 देखें, केस 2 में हमने क्या दिखाया कि जो हमारे पास पहली बात थी वो तो वही है जो हमने केस 1 में की थी। क्या पहली बात कि साहब u1 जो है वो 30 है, u2 जो है वो हमारे पास 10 है, यानी ज़ाहिर मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, और इनके एरोज़ भी वही हैं जो हमने यहाँ दिखाए थे। तो केस 1 इनिशियली तो सेम ही था, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास जो है वो कोलिजन के बाद अगेन द सेम थिंग, इसमें मैसेज वैसेज का तस्करा भी हो जाएगा, लेकिन हम फिलहाल इसका ये यहाँ देख रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे पास वेलोसिटीज़ की क्या पोजीशन है। तो वेलोसिटीज़ अगर हम ये देखें कि कोलिजन के बाद बॉडीज़ जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी एरोज़ अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो याद रखिए कि इनका सम जो है वो किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बॉडी 2 को ये लगेगा कि हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड से बॉडी 1 पीछे हट रही है, और बॉडी 1 को ये लगेगा, रिलेटिव की बात हो रही है, कि बॉडी 2 जो है वो 20 से पीछे हट रही है। लेकिन इन दोनों के लिए जो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आएगी वो ऐड होके आएगी, याद रखिए ये बात। तो ये एक नई इक्वेशन हमारे पास बन गई कि u1 - u2 इज इक्वल टू v1 - v2। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको किस तरीके से देख रहे हैं। ये हमारे पास सेकंड केस हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं थर्ड केस की। अब यहाँ देखें कि थर्ड केस में जो इनिशियल सिचुएशन थी उसी को हमने चेंज कर दिया। हमने कहा कि जी हमारे पास जो है वो क्या हुआ है, तो हमने कहा ये हुआ है कि हमारे पास 2 बॉडीज़ दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एरोज़ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो याद रखिए कि जब एरोज़ अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका मतलब क्या है कि अगर एक की स्पीड 30 है और दूसरे की स्पीड 10 है, तो रिलेटिवली यानी बॉडी 2 को ये लगेगा कि बॉडी 1 उसकी तरफ 40 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और इसी तरीके से बॉडी 1 को ये लगेगा कि बॉडी 2 उसकी तरफ जो है वो 40 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो दिस विल बी दी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। यानी जब एरोज़ हमारे पास जो है वो इस तरह से हों कि उनके जो हेड हैं वो पॉइंट कर रहे हो टुवर्ड्स ईच अदर, यानी बेसिकली ये असल में अपोजिट हैं ये एरोज़, तो आपने ऐड करना है इन वेलोसिटीज़ को। और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर कोलिजन के बाद ये बॉडीज़ आगे जा रही हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया फर्स्ट केस में, तो ये हमारे पास क्या हुआ था v2 - v1। तो हमने कहा कि यहाँ पर भी हमारे पास ये 50 और ये 10 हो तब ये हमारे पास 40 आएगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन होगी इसके मैग्नीट्यूड की। ये है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और ये है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि एरोज़ को सिर्फ आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है वेलोसिटीज़ को या ऐड करना है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा सुन लें कि अगर एरोज़ एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हों यानी अपोजिट डायरेक्शन में हों तो ये ऐड होके आएगा सारा कुछ, और अगर एरोज़ एक ही डायरेक्शन में हों तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। केस 4 में फिर वही बात है कि हमने केस 3 का जो इनिशियल सिचुएशन थी वही यहाँ कंसीडर की है, लेकिन जो कोलिजन के बाद का मामला है वो डिफरेंट हो गया है, और अब हम देख रहे हैं कि कोलिजन के बाद ये अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे हैं। तो फिर वही बात है कि आप इसके मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपली इक्वेशंस को देखें तो जब भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एरोज़ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, चाहे वो इस तरह हों अपोजिट डायरेक्शन में या इस तरह हों अपोजिट डायरेक्शन में, असल में ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ दोनों जगह जो वो ऐड होकर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच आई है, तो ऐड होकर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन आई है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन खुसूसन MCQs में बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात आपने नहीं करनी है, आप बड़ी आसानी से ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, लेकिन इसमें एक बात ये याद रखिए कि इन इलास्टिक कोलिजन के केस में हम पहले ही बात कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जहन में रखना है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है वो हमेशा लेस देन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच होगी। क्यों? इसलिए कि हमने देखा है कि हमारे पास जब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन हमारे पास जो
काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, बल्कि मुख्तलिफ फॉर्म्स में, चाहे वो हीट की फॉर्म हो या साउंड की फॉर्म हो, उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो नतीजा उसका क्या है कि हमारे पास जो है वो हमारा जो हमेशा वेलोसिटी है सेपरेशन की, वो पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन विल ऑलवेज बी और इज़ ऑलवेज बी लेस देन द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिर यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं जो आपके मुख्तलिफ पास पेपर्स के हैं, इनको ट्राई कीजिए। यहाँ लिख भी दिया है कि कौन सा पार्ट जो है वो इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन तो ज़ाहिर बहुत हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने सिर्फ यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जो आप इजीली देख सकते हैं। चलें कुछ MCQs भी सॉल्व करते हैं। एक पिछले लेक्चर में हमने कुछ MCQs सॉल्व किए थे, यहाँ पर भी कुछ सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर मई जून 2 का क्वेश्चन है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि 2 सिमिलर स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड ट्रेवलिंग विद स्पीड v आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको करवाया है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन के हवाले से, लेकिन यहाँ पर देखें क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। द स्फीयर्स हैव अ हेड ऑन कोलिजन, तो हेड ऑन भी लिख दिया उसने और इलास्टिक कोलिजन भी लिख दिया, तो पता चल गया कि भाई ये इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। अब देखेंगे किस तरह से स्टेटमेंट, बहुत सिंपल, लेकिन जब तक आपने कॉन्सेप्ट ना पकड़े हो उस वक्त तक आप इसको सॉल्व सही तरह से नहीं करेंगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द स्फीयर्स स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट। अब ये पहला जो हमारे पास सेंटेंस है या पहली जो कंडीशन उसने दी है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की और स्टिक टुगेदर होता है इन इलास्टिक कोलिजन, तो ये तो एब्सोल्युटली नॉट। फिर हमने कहा जी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट इज ज़ीरो। अब अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो वही होगी जो आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जो कि इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन असल बात यह है कि वो ज़ीरो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो इसके बावजूद कि हमें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं और शायद मोमेंटम हम माइनस भी करते हैं इसका, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चाहे ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो या एक डायरेक्शन में जा रहा हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, सिंपली आपने काइनेटिक एनर्जीज़ को ऐड करना है। तो ये इसलिए ये गलत है। टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट इज़ 2mv। अब यहाँ देखें तो पता चला कि इसका मोमेंटम कितना था mv और इसका मोमेंटम कितना था mv, तो mv माइनस mv जो है वो ज़ीरो आएगा, 2mv नहीं आएगा। तो बी केयरफुल ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये हमारे पास जो है वो पता चला कि ये वाला भी हमारे पास गलत है। तो एक तो ज़ाहिर है कि यही बच गया तो यही ठीक होगा, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है बहुत सिंपल सी कि जब जैसे हम बात कर चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई हो रहा है, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv², तो कितना हो जाएगा हमारे पास mv², क्योंकि ये हाफ और ये हाफ 0.5 तो ये हो गया mv²। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सही आंसर है। तो ये तो एक तो जहन में ये रखिए। दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं या दूसरा जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ये इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर दें, ये असल में इस तरह से जा रहा है। यहाँ देखें कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। तो पता चला कि बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमारे पास मई जून 2 का है। 11th क्वेश्चन है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोर्स इनटू 2 masses m1 and m2 that move apart with speed v1 and v2 रिस्पेक्टिवली। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास एक्सप्लोजन का केस है, पिछले लेक्चर को जाके देखिए, उसमें हमने ये एक्सप्लोजन वगैरह के सारे केसेस डिस्कस किए हैं लेक्चर 3 में। तो वहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लगेगा तो उसको हम कैसे देख रहे होंगे। एक तो ये हमने देखा m1 v1 की हमने बात की है, ये तो ये हमारे पास आ रहा है। लेकिन जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें इनिशियली जो हमारे पास मोमेंटम था सिस्टम का वो ज़ीरो था, क्योंकि जो हमारे पास बॉडी थी वो एक्सप्लोजन से पहले कंप्लीट रेस्ट में थी। तो चाहे v1 हो या v2 हो, ये दोनों ज़ीरो थे। तो नतीजा ये है कि हमारे पास टोटल जो है वो भी ज़ीरो है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आप इस तरह से लिख सकते हैं, और आपको पता है कि यह चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में गई है एक वेलोसिटी, तो इसको आप यहाँ नेगेटिव दिखा दें। जब आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं
तो पता चला कि आपने इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया। और ये आपके पास चूँकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो ये था कि साहब V1 और V2 का रेशो निकालो। तो आपने सब्जेक्ट बनाना है V1 ओवर V2 को, तो वो जब आपने सब्जेक्ट बनाया V1 ओवर V2 को, तो ये M2 तो यहाँ पर मौजूद था, लेकिन M1 फिर आप यहाँ डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये आपके पास जो था वो M2 डिवाइड बाई M1 आ गया। तो यही आपका सिंपल सा आंसर है। और ये पार्ट जो इसका ऑप्शन बी है वो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। तो ये दिस इज़ योर आंसर। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये याद रहे कि जब एक्सप्लोजन होता है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ज़ीरो होता है, और फिर हमारे पास ये जो पार्ट है यानी राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। क्वेश्चन 3 को देखें, जो ये बिल्कुल वही बात है जो अभी हम करके आए हैं। मुख्तलिफ जो है वो कंडीशंस बयान की गई हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नहीं भी पढ़ रहा है तो सिर्फ ये देख लें कि ये हमारे पास एरो टूवर्ड्स ईच अदर हैं। ये एरोज़ एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या करें भाई, टूवर्ड्स ईच अदर, तो इनको ऐड कर दो। तो UA प्लस UB ये हो गया, और इसको माइनस कर दो तो VA माइनस VB माइनस VA वो ये आ गया। बाकी सारे के सारे दायरे के हम पढ़ चुके हैं अभी। तो इवन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इतना आसान है, ये अक्टूबर नवंबर 2 का क्वेश्चन है 11, ये इतना आसान क्वेश्चन है। अब आपको मेरे ख्याल से सिर्फ एरोज़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे रिलेटेड इक्वेशन कौन सी बनेगी। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया बताया कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपने ऐड करना है, वेलोसिटीज़ को ऐड कर दिया। जब सेम डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, वेलोसिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये भी बता चुका हूँ कि VB जब तक ग्रेटर देन VA ना हो ये सिचुएशन नहीं बन सकती। अगर VB इज़ इक्वल टू VA होगी या VA इज़ ग्रेटर देन VB होगी तो ये बॉडी स्टिक टुगेदर के सिचुएशन पे चली जाएंगी, जो इन इलास्टिक कोलिजन का केस है, इलास्टिक का केस नहीं है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ें, कुछ एक आध क्वेश्चन और देखें। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 3 का। फिर वही बात है कि आपने क्वेश्चन को चाहे ना भी पढ़ें तो आप सिर्फ और सिर्फ एरोज़ देख के समझ सकते हैं कि आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ करेक्ट, तो वो सारी उसने कहानी बयान की हुई है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो क्वेश्चन ना भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं है, टाइम बच जाएगा आपका। देखें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐड कर दें, ये ऐड कर दिया आपने। फिर ये दोनों फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर ऐड कर दें, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आंसर आपके पास ए ही आ रहा है। बाकी सारे के सारे रॉन्ग आंसर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन के रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन को आप किस तरह से देख रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल वे टू गिव द आंसर ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैंने जो एरोज़ आपको बता दिए हैं उसको बस जहन में रखें तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब यहाँ देखें, ये भी बहुत उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। द डायग्राम शोज़ टू, कौन सा क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 6 का। द डायग्राम शोज़ टू आइडेंटिकल स्फीयर्स x एंड y, यानी इनके मैसेज सेम है। इनिशियली x मूव्स विद स्पीड v डायरेक्टली टूवर्ड्स y इज स्टेशनरी। तो कौन सा केस है ये जो हमने डिस्कस किया था, केस 1। क्या कहा था केस 1 में कि दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज़। तो अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ v है तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, और हमने देखा था कि जो इनकी डायरेक्शंस हैं वो तो वही हैं। तो पता चला कि कोलिजन के बाद जो हमारे पास x है वो स्टॉप हो जाएगा और y जो है वो उस वेलोसिटी से ट्रैवलिंग शुरू कर देगा जिससे पहले x ट्रैवल कर रहा था, और दायरा के डायरेक्शन जैसे मैंने आपसे बताया कि वही है, यानी राइट साइड। तो दिस इज सिंपल आंसर, द D इज़ द सिंपल आंसर हियर। तो याद रखिए कि जब भी इक्वल मैसेज होंगे दे विल इंटरचेंज देयर velocities. So this is the point. And क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ये आपको जैसे हमने अभी कहा कि कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल हैं लेकिन वो आप गलती कर जाते हैं। कोई आपके पास क्वेश्चन है ये अक्टूबर नवंबर 9 से 1-2 पेपर था। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ऑलवेज़। जब आप ये कहते हैं कि विद स्टेटमेंट अबाउट अ बॉल दैट स्ट्राइक्स ए टेनिस रैकेट एंड द बाउंड इज ऑलवेज करेक्ट, तो बी केयरफुल। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज कंजर्व। तो हमने कहा कि भाई उसने हमसे ये तो कहा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी ये कोलिजन है या इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज कंजर्व हमेशा नहीं होता। अगर वो कह देता कि ये इलास्टिक है तो हम मान लेते, लेकिन उसने हमसे कहा ऑलवेज, तो मैं कहा नहीं, ऑलवेज तो नहीं होता।
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज कंजर्व। तो ना तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है और ना सिस्टम की कंजर्व है। अव्वल तो बात यह है कि बॉल को तो आप सेपरेट करके देख ही नहीं सकते, आपने बात करनी थी सिस्टम की, लेकिन सिस्टम की भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है हमेशा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इन इलास्टिक कोलिजन का केस अगर हो जाए ये, तो कुछ और हो जाएगा, यानी कंजर्व नहीं रहेगी। तो ऑलवेज का जो मामला है वो हमें ये बता रहा है कि ये दोनों गलत है। इसी तरीके से टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल इज कंजर्व नहीं, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। याद रखिए, हम पहले बात कर चुके हैं कि जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात होगी तो सिस्टम की बात होगी, सिर्फ एक बॉडी की बात नहीं होगी। रॉकेट और फ्यूल, गन एंड बुलेट, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। तो याद रखिए कि ये इस तरह से नहीं है कि पता चला कि साहब वो आपने सिर्फ एक चीज़ को, यानी बॉल को या वॉल को या रॉकेट को या फ्यूल को कंसीडर कर लिया। एज अ होल सिस्टम यू हैव टू कंसीडर। तो ये आपके पास एक ट्रिकी टाइप की सिचुएशन है, आप परेशान भी हो सकते हैं कि यार यहाँ पे भी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखा हुआ है, लेकिन आपने पढ़ने में गलती की। यहाँ लिखा हुआ है टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल, तो ये सिस्टम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपने कहा कि ये गलत है, मुझे सिस्टम चाहिए। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज वर्ड्स। ऑलवेज नहीं है। क्वेश्चन 7 देखें, मई जून 8 का है। क्वेश्चन 7 मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं ताकि जो है वो आपको जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड चीज़ें आपको करा दी जाएँ। Two equal masses x and y are moving towards each other on a frictionless air track as shown. The masses make an elastic collision. अब क्या कहा है, इक्वल मैसेज हैं, और इक्वल मैसेज के बाद उसने कहा कि जी ये इनकी वेलोसिटीज़ हैं। तो जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि ये इंटरचेंज कर लेंगे वेलोसिटीज़ को। तो बॉडी x जो है उसकी सूरत हाल क्या होगी कि वो अब 30 मीटर से चल रही होगी, और किधर चल रही होगी, टू द लेफ़्ट, क्योंकि ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी थी लेफ़्ट की तरफ, तो ये 30 मीटर से लेफ़्ट की तरफ जा रही है। और हमारे पास जो y है वो क्या हुआ, वो 50 मीटर से राइट पे जा रही है, यानी एक्चुअली कोलिजन के बाद ये यूं चले गए। तो बी केयरफुल। तो इंटरचेंज कर ली इन्होंने वेलोसिटीज़, पहले इसकी वेलोसिटी थी 50 और ये जा रही थी टुवर्ड्स राइट, तो अब ये जो है ये जाएगी 50 से टुवर्ड्स राइट। पहले ये 30 मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही थी टुवर्ड्स लेफ़्ट, अब ये जाएगी इसी वेलोसिटी से टुवर्ड्स लेफ़्ट। तो दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज़ एंड दिस इज़ समथिंग which we are repeatedly emphasizing on. Again the same thing. अब देखें क्वेश्चन 8 में क्या है, वही अक्टूबर नवंबर 8 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारे पास जो है वो ये जो सिचुएशन है वो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ये देख लें कि इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अपोजिट डायरेक्शन में एरोज जा रहे हैं, तो ऐड करना है। तो u1 प्लस u2, तो हमने कहा भाई जब माइनस वाले जो हैं इनको तो माइनस कर दो, हटा दो, ये रह गया सिर्फ u1 प्लस u2, एक रह गया c, एक रह गया d। तो इसमें तो u1 प्लस u2 है, इसमें भी u1 प्लस u2 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास v1 प्लस v2 है, यहाँ पर v2 माइनस v1 है। क्या फ़र्क बताया था मैंने आपको कि जब एरोज़ जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों तो आपने v2 माइनस v1 करना है, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो v2 प्लस v1 करना है। रीज़न पहले ही बता चुका हूँ कि क्या रीज़न है इसका। तो ये हमारे पास जो है वो, अब सिंपल सी बात यह है कि हमने कहा नहीं भाई इसका मतलब है कि सी भी गलत है, हमारे पास सिंपली जो आंसर होगा वो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 होगा, चूँकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमेशा जो हमारे पास ये v2 नहीं है, ज़ाहिर है v1 है ये। तो ये जो हमारे पास सिचुएशन है एक ही डायरेक्शन में जाते हुए वो माइनस से आती है, बात पहले भी कर चुका हूँ कि v2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन v1। If it will be v2 is equal to v1 और v1 is greater than v2 तो फिर ये स्टिक टुगेदर पे चला जाएगा और ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होगी। तो बी केयरफुल ऑफ दी सिचुएशंस, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने यहाँ इसको फिर रिपीट भी कर दिया है। इन कंडीशंस को ज़रूर जहन में रखें, तभी आप इसका आंसर सही दे सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, अगर एरोज़ को चेक कर लें तो ही आप इसका आंसर ठीक दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें भी अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसका साइकिल का तस्करा है। अ टेनिस बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज स्ट्रक बाय अ टेनिस रैकेट
द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज चेंज एज शोन। उसने कहा जी एक जो है वो बॉल आके हिट करती है, रैकेट की तरफ आती है और बाउंस बैक करती है 30 से। तो अगर आप इसको जो है वो जो है मैंने जो आपको समझाया है कि जब वेलोसिटीज़ की सिचुएशन होगी इस तरह से कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरह से आ रहा होगा, वेलोसिटीज़ को ऐड करके आ रहा होगा। और जिस मैंने आपसे कहा कि इसकी जो डिटेल देखनी है अगर, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लेक्चर है उसको देखें तो बहुत आसान है। मगर ये बात याद रख सकते हैं अगर इजीली आप कि हमारे पास जब भी बॉल इस डायरेक्शन में जाके रिबाउंड होगी तो सिंपली उसकी वेलोसिटीज़ को ऐड करना है। मैथ्स ज़ाहिर आपके पास ये है, यानी सिंपल चीज़ ये है कि ये चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास इस तरह से लिखा जा रहा है कि वेलोसिटीज़ ऐड होंगी, मैथ्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मैथ्स था 100, उसको आपने केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, अल्टीमेटली ये आपके पास चेंज आ रही है। और ज़ाहिर है कि जब मैं ये बात भी पहले बता चुका हूँ कि चेंज का यूनिट भी वही होगा जो क्वांटिटी का यूनिट है। तो चूँकि क्वांटिटी का यूनिट है केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड, सो हमारे पास जो चेंज है इसका यूनिट भी आपके पास यही आएगा, यानी केजी मीटर पर सेकंड। सो बी केयरफुल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, स्टेशनरी बॉडी एक्सप्लोर्ड इनटू टू कंपोनेंट्स ऑफ मास m एंड 2m। एक बड़ी बॉडी थी, एक्सप्लोड हुई है और इसमें 2 इसके पीस बन गए हैं, एक m है और दूसरा 2m है। अपोजिट डायरेक्शन में समझाते हुए आपको दिखाया है व्हाट इज द कंपोनेंट्स गेन काइनेटिक एनर्जी x एंड y रिस्पेक्टिवली, यानी काइनेटिक एनर्जीज उसने कहा कि इनकी x और y हैं और यहाँ उसने आपसे कहा कि इनका रेशो क्या होगा। अब यहाँ पर आपको दो स्टेप में इसको देखना होगा। यानी मिसाल के तौर पर पहली बात तो यह है कि उसने कहा कि जी एक्सप्लोडिंग का केस है, तो यानी हमारे पास इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन भी किया है इसी तरह का, वहाँ पर हमारे पास जो था वो v1/v2 का रेशो था। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ m1/m2 का रेशो क्यों आ रहा है और कैसा आ रहा है, हमने क्यों लिया है ये, इसलिए कि यहाँ हमें ये पता है कि जब हम काइनेटिक एनर्जीज़ देखेंगे तो ये हाफ m1 v1 स्क्वायर आएगी और यहाँ हाफ m2 v2 स्क्वायर आएगा। तो ये m1/m2 जो है हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे निकाला जा सकता है या इसकी वैल्यूज़ क्या हैं। वो यहाँ जैसे हमने देखा कि m और 2m हैं, तो अगर हम यहाँ पर इस वाले स्टेप में जो हमारे पास अगर v1/v2 लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा m2/m1, और हमारे पास m2 क्या है तो पता चला वो 2m है और m1 क्या है वो m है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है vx, मैंने इसको यूँ करके लिख दिया है vx और vy, तो 2/1 एक्सक्यूज मी। यहाँ पर देखें तो ये काइनेटिक एनर्जीज की रेशो की बात हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटीज़ जो थी इनके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो हमने इसको होल स्क्वायर कर दिया, यानी vx का होल स्क्वायर डिवाइड बाई vy का होल स्क्वायर, और vx और vy का जो रेशो था वो आप निकाल चुके थे 2, तो चाहे आप डायरेक्ट 2 लिख दें या फिर दोबारा ऐसा ये लिख दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर 2 का 4, और ये कैंसिल हो गया तो ये 2, तो इससे कैंसिल हो के अब क्या बात आ जाएगा 2 या 2/1। तो ये 2/1 जो है आपके पास है आंसर सी का, या सी आंसर है, और जो है वो आपके पास यहाँ पर यूनिट कोई नहीं है, इसलिए कि ये सेम क्वांटिटीज़ का यूनिट है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं जो आज का डिस्कशन था उसके लिहाज से, इसको आप देखिए। और जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिख भी दिए हैं जो P2 के हैं, बाकी जो P1 के हैं उनको भी कोशिश कीजिए। कुछ मैंने यहाँ किए हैं, कुछ अगले लेक्चर्स में करवा दूंगा, लेकिन जो है वो ट्राई ये करें कि जो मैंने समझाया है वो आप ख़ुद कितना बैठ के उसको अप्लाई कर सकते हैं, और जितना आप अप्लाई कर सकेंगे उतना ही आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी ये चीज़ समझ में आ गई है, एंड नाउ यू कैन प्रोसीड टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी इफ़ यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो ये एक विशेष साइकिल टाइप की चीज़ है कि ये अगर समझ में आ गई है तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, एंड सो ऑन। एनी हाउ, तो ये आज का डिस्कशन था, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, इसको आप इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।